Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. I'm going to discuss a topic that is from class 11th from chapter 1, the living word. This is part 1. Firstly, we are going to discuss that what is living, and we are also going to discuss that how living things are different from non-living things. In this topic, we are going to discuss what are the characteristics of living, कि जो living things हैं उनमें क्या क्या qualities होती हैं, and how they are different from non-living things, that we are going to discuss. So, firstly, what is living? Living organism have unique features. इनके क्या होते हैं, कुछ unique features होते हैं which are only present in living, not in non-living things, which makes them different from non-living things. मीन जो living things हैं उनमें कुछ special qualities होती हैं, कुछ unique features होते हैं जो कि non-living things से उनको differ बनाते हैं. So living organism have unique feature, like growth, they show growth, reproduction, metabolism, cellular organization and कॉन्शियसनेस. ये सारी क्वालिटीज़ लिविंग थिंग्स की हैं विच मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल द करेक्टर्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. So growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. Next is, firstly we are going to discuss the first character, that is growth. Living things show growth. How? By cell division. We know very well that we are made up of different types of cells. We are multicellular. When cell divide, it result in increase in size and mass also. जब सेल डिवीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वन सेल, जब सेल टू पार्ट्स में डिवाइड होगी और दो से क्या बनाएगी, चार बनाएगी. सो दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑल्सो. इससे ऑफकोर्स साइज भी इंक्रीज होगा एंड मास भी इंक्रीज होगा. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली. वी नो वेरी वेल दैट नॉन लिविंग थिंग आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. नॉन लिविंग थिंग में सेल ही नहीं होता तो सेल डिवीजन कहाँ से होगा? वेट. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, नॉट ऑफ नॉन लिविंग थिंग. सो ग्रोथ किस में प्रेजेंट होती है? लिविंग थिंग में, दैट इज इंटरनल. Growth is also present in non-living thing, but it is different from the living thing. For example, these are living thing and these are non-living thing. Living thing में जो growth होती है that is internal. But जो non-living thing में जो growth होगा वो होगा external. For example, this is a mountain. ये एक mountain है. Mountain की growth हो सकती है. How? when material deposited from the outside. For example, यहाँ से material ऊपर की साइड डिपॉजिट हो रहा है, it result in increase in growth. इससे क्या होगा? इसका ग्रोथ होगा. बट ऑफ कोर्स दिस इज अ एक्सटर्नल ग्रोथ, ये अपने आप इंटरनली ग्रो नहीं करते. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. मीन जो लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, बट जो नॉन लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है. सो दिस इज द फर्स्ट करेक्टर. ग्रोथ इज डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट्स. एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ स्टॉप आफ्टर सर्टेन एज. एक पर्टिकुलर एज के बाद एनिमल्स में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. वी आर ऑल्सो एनिमल. ह्यूमन बींग्स में भी एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. बट प्लांट्स इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम चलता रहता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. So this was the first character, growth. It is different in living and non-living thing. अगर growth internal है, it mean it is a living. अगर growth external है, it mean it is a non-living. Next characteristics is reproduction. What do you mean by reproduction? When the process of producing offspring mean जो उनके young ones हैं, अगर कोई parent अपने new young one बनाता है जो कि उसके जैसे दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. सो दिस इज ऑल्सो द characteristics of living thing, and it is of two types, sexual and asexual reproduction. But there are some exceptions like mule. Mule क्या होता है? स्टेराइल है.
स्टेराइल मीन इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिविंग नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग। सो इट मीन रिप्रोडक्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, बट देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक म्यूल इज अ हाइब्रिड एंड इट इज़ अ स्टेराइल एनिमल, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अदर example of sterile is worker honeybee. worker honeybee Worker honeybee is also a sterile. It cannot reproduce, but it is a living. Sterile couples also. Sterile couples. There are some persons which are sterile, they cannot reproduce, but it doesn't mean that they are not living. इससे हमें क्या पता लगा कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का, बट जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट से दैट इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। इसका मतलब हम जस्ट एक करेक्टर के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसका मतलब अगर हमें देखना है कि कोई चीज़ लिविंग है, इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को देखना पड़ता है, नॉट जस्ट दैट इट इज़ रिप्रोडक्शन, इट इज़ शोइंग रिप्रोडक्शन और इट इज़ अ लिविंग। So it mean if you want to check that it is a living or non-living, you should know the different characters, not just reproduction. So reproduction is the process of producing offspring. It is of two types, sexual and asexual, but there are some exceptions like mule, worker bee, and sterile couples. They cannot reproduce, but they are living. Next character is metabolism. Metabolism, sum total of all biochemical reactions in living body is called metabolism. मीन हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप. It can be anabolic, it can be catabolic. Anabolic metabolism mean when small things combine together to form a big particle, this is called anabolic reaction. For example, when glucose combine with glucose, ग्लूकोज से कंबाइन करके क्या बनाता है, ग्लाइकोजन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिक रिएक्शन. कैटाबोलिक मीन जस्ट अपोजिट ऑफ एनाबोलिक. व्हेन large particle convert into small particles, this is called catabolic reaction. For example, अगर हम ग्लाइकोजन को ब्रेक करें, ऑफ कोर्स ये किस में डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंट ग्लूकोज के अंदर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन. सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म है वो जस्ट लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता. बट येस, लैब के अंदर हम मेटाबॉलिज्म करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल लैब में हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मेटाबॉलिज्म करवा सकते हैं. बट ऑफ कोर्स द इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज्ड इन लैब इज कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म है, हम मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नहीं है. सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग थिंग में ही प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में थिंग में प्रेजेंट नहीं होता. सो मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन नॉन लिविंग थिंग. सो दिस इज द मेन कैरेक्टर. नेक्स्ट इज cellular organization. Cellular organization mean all living body is made up of different types of cells. So this is also the characteristics of a living thing. Non living things में cellular organization absent होता है. So cell are the structural and function unit of life. Cell एक basic unit है life की, सबसे छोटी यूनिट हम बोल सकते हैं. जब सेल्स कंबाइन करते हैं, सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म tissue combine together to form organ combine together to form organ system, and organ system combine together to form a whole body. So this is also the characteristics of living things. Next is consciousness. Consciousness mean ability to sense the environment and response to stimuli. हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए. फॉर एग्जांपल, आपको गर्मी लग रही है, यू विल स्विच ऑन द फैन. तो जब भी बाहर से कोई कंडीशन अप्लाई होती है, आपकी बॉडी उसको क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. ऑफ कोर्स
फॉर एग्जाम्पल टेबल है, चेयर है, वो तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे. सो जस्ट दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग. बट देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको पैरालिसिस हुआ है. अगर कोई पैरालाइज्ड है, पैरालिसिस किस, सॉरी, कोई ह्यूमन है जो कोमा में है. कोमा में, अगर कोमा में कोई पर्सन है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, बट इट डजेंट मीन दैट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो कॉन्शियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ, is the characteristics of just living things. But exception is a person who is in coma. जो कोमा में पर्सन होगा वो अपनी बॉडी, वो उसकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी. इसका मतलब हम कॉन्शियसनेस के बेसिस पे भी जस्ट नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बिकॉज देर आर एक्सेप्शन ऑल्सो. बट दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग कॉन्शियसनेस शो नहीं करते. So here we are going to discuss two questions that is related to this topic. First is, which of the following is the defining property of living organism. अभी हमने डिस्कस किया था कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म. बिकॉज ग्रोथ में भी, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में भी होता है. रिप्रोडक्शन में हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि जो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती. कॉन्शियसनेस में भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी. बट मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर. मतलब कि मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम बोल सकते हैं येस इट इज़ अ लिविंग थिंग. सो मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डो नॉट रिप्रोड्यूस. अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है वो फर्टिलाइज नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते. म्यूल हमने एग्जाम्पल पढ़ा. इट इज़ अ हाइब्रिड, इट इज़ अ स्टेराइल एनिमल, sterile worker bee and sterile human couple. So answer is all of the above. ये सारे ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते. So this was the all about the topic, that is characteristics of living thing. Next topic we will discuss in part 2. Thank you. Have a nice day.